morning to you all, and this is English 2 book, BioSketch, page number 95. Please open this book, and we are going to do this part of this book, this section of this book. It is BioSketch. Now, how many of you have seen that movie which has been made on MS Dhoni? आप में से जितने स्टूडेंट्स ने MS धोनी पर बनी हुई वो मूवी देखी है उस वो हैंड रेज करेंगे. Good. So many of you have seen that movie, right? So what is shown in that movie is कि धोनी के बारे में आपको काफी चीजें बताई गई हैं, पर क्या सारी चीजें बताई गई हैं? No, it is not so, right? So there is a short description of a person of MS Dhoni in that particular movie. So a BioSketch is a very short description of a person whose profile is given or known. Now there is a profile given to you, and this profile could be of anyone like a very known personality or unknown personality. Both can be there. Okay, BioSketch जो होता है वो known personality पे भी हो सकता है, unknown personality पे भी हो सकता है. तो जैसे मैंने मूवी की बात करी तो that was a very known personality. But Rakshit, you have raised your hand. Do you want to ask something? I've just begun the session. Yes, Rakshit. मैम आपने वो बोला था हैंड रेज करने के लिए करा था. Okay, Rakshit. So BioSketch is a very short description, a beautiful, short, sweet, and crisp description of a person whose profile is given to you. The information will be given to you, will be provided to you. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये आपको दी हुई होती है और आपको उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने हैं. अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? फर्स्ट and very important information is the name of the person. Second, very important for the BioSketch is age or how उसका बर्थ किधर हुआ है, बर्थडे कब है या बर्थ प्लेस कहाँ का है, all those things. Then height and weight. ठीक, family. Now family is optional. Family, everyone doesn't like to talk about the family. So if the information about the family is given, then you will include it in the BioSketch. Or if the information is not given, then you have, because the information is not given, then you cannot write anything. अगर आपके फैमिली के बारे में कुछ दिया हुआ है तो आप उसको BioSketch में, BioSketch is nothing. Basically आपको एक लिखना है उसके बारे में ना, like a paragraph. ओके, सो उसके बारे में आपको लिखना है. ठीक है, अब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको क्लूज नहीं मिलते, आपको हिंट नहीं दिया जाता. जैसे फॉर एग्जांपल राइट अ पैराग्राफ ऑन योर स्कूल, सो दे डोंट टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट एंड व्हाट यू डोंट हैव टू राइट, राइट? बट इन BioSketch अगर आपको व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप उसके बारे में कैसे लिखोगे? जैसे मिस्टर राम भरोसे इज अ गार्डनर. हु इज द गार्डनर? गार्डनर माली को कहते हैं, है ना? तो माली के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो आप BioSketch लिख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, सो आपको इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू, व्हेन यू आर राइटिंग अ BioSketch अबाउट अ पर्सन or anyone, you have to emphasize, you have to pay very attention to all the details which are given in the clues or the information given about the person, right? So आपको ये क्लूज को ना बहुत ध्यान से देखना. अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लूज होते हैं, दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन और द personality, whatever. Then the age, birthday या birthplace. अब देखो यहाँ पर age दिया around 50 years, so it is not a specific age, but then the something of regarding the age is given, so we have to include it in the BioSketch. Then family.
फैमिली, 2 चिल्ड्रन, 1 बॉय एंड अ गर्ल। प्रोफेशन, ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप हमेशा बायो स्केच में मेंशन करेंगे। बायो प्रोफेशन, या फिर इसको एक और वर्ड होता है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन, ये भी कहते हैं प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। गार्डनर एट अ स्कूल इन दिल्ली। His likes, loves taking care of plants. Why he is popular? To creator and a caretaker of plants. Now here I want to mention, जैसे his likes में यहाँ पर बहुत ही एक छोटा सा क्रिस्प सा स्टेटमेंट दिया है, loves taking care of plants. Now for example, आपके ही क्लास का कोई स्टूडेंट है और उसकी हमने, अच्छा his likes की जगह हॉबीज भी लिखा हुआ हो सकता है, तो हॉबीज को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब आप हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही के क्लास के किसी स्टूडेंट ने लिखा है हिज हॉबीज और हर हॉबीज आर रीडिंग, देन लिसनिंग म्यूजिक, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, इंटरनेट सर्फिंग, प्लेइंग, and so many things. So when so many hobbies are given, तब आप क्या करेंगे? क्या सारी हॉबीज के बारे में लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मैक्सिमम 3 या 4 हॉबीज के बारे में लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू इग्नोर ऑल द हॉबीज, क्योंकि लाइक्स जो होती है वो बहुत सारी हो सकती है और इन द सेम मैनर हॉबीज भी बहुत सारी हो सकती है, बट हॉबीज में आप 2 या 3, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको लिखना कैसे। यू हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। ओके, सो मीनिंगफुल सेंटेंसेस, when I'm saying meaningful sentences, then you can decorate your sentences as well. Now how to decorate the sentences? एक तो होता है स्ट्रेट अवे लिखना, माई नेम इज से रक्षित, माई नेम इज रक्षित, दिस इज अ प्लेन सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। नाउ इफ आई वांट टू डेकोरेट दिस सेंटेंस, तो मैं कैसे डेकोरेट करूंगी? इसकी डस्टिंग करूंगी, इसके ऊपर फूल पत्ती लगाऊंगी? नो, व्हाट आई एम गोइंग टू से इज आई एम नोन टू बी रक्षित। I have said the same thing, that my name is Rakshit, but the way of telling a person is bit more different. So my name is Rakshit and then I am known to be Rakshit. हो गया ना, डेकोरेशन हो गया सेंटेंस का। एक सिंपल सेंटेंस, एक थोड़ा सा आपने उसको डेकोरेट करके बोल दिया। सो बायो स्केच में आप अपने लैंग्वेज को डेकोरेट कर सकते हैं until and unless it is meaningful. अगर मीनिंग सेंटेंस का नहीं बन रहा है तो आपके मार्क्स कटते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल इज कि जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में आपके बुक में जो दोनों एग्जांपल्स दिए हैं उसमें वर्ड लिमिट मेंशन नहीं है। ठीक है, यूजुअली जब आप कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको वर्ड लिमिट पक्का मेंशन होती है। अब वर्ड लिमिट मेंशन होती है तो आप क्या करोगे? मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप क्या वर्ड्स को काउंट करोगे? मतलब 1 2 3 4 5 and so on? No, you are not going to do this. Roughly what we estimate is, what we assume is that in one line there are around 8 to 10 words. एक लाइन में आप 8 words से लेके 10 words तक लिखते हैं। अब किसी बच्चे की अगर राइटिंग बड़ी है ना, तो उस बच्चे को ऑलरेडी मालूम होता है कि मेरी राइटिंग दूसरे बच्चों से थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है उसके 8 वर्ड्स ही आते हो या हो सकता है उसके 6 वर्ड्स आते हो, है ना। तो आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो उसके हिसाब से आपको अपनी लाइंस को कैलकुलेट करना होगा। नाउ फॉर एग्जांपल हम ये बायो स्केच लिखेंगे मिस्टर राम भरोसे पर, एंड इफ it is mentioned, although it is not mentioned in your question, but अगर mention होता कि write only in 100 words, so फिर हम क्या करते? हम 10 lines लिखते, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी एक लाइन में 10 वर्ड्स जो है
वो आ जाते हैं। तो जब मेरी एक लाइन में 10 वर्ड्स आ जाते हैं तो 10 लाइन्स मीन्स 10 into 10 100 वर्ड्स हो गए, तो हो गए ना 100 वर्ड्स। अब इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप 100 वर्ड से एक भी वर्ड ज्यादा नहीं लिख सकते या एक लाइन ज्यादा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट आपको वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखना होता है। आप वर्ड लिमिट से अगर बहुत ज्यादा लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक लाइन ज्यादा लिख दी कोई बात नहीं, 2 लाइन लिख दी कोई बात नहीं, बट अगर आपने 7 लाइन्स ज्यादा लिख दी तो बात है, तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड लिमिट विच इज गिवन। अच्छा, it is not so that it is only given in the English, but it is given in every language. Whether you are going to write something in the English or Hindi or Sanskrit, there is always specified that you have to write this much, these many words in this particular section. So you have to be very careful about it. Although आपके एग्जाम्पल में या आपकी बुक में वर्ड लिमिट के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन हम आगे जो एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें वर्ड लिमिट का हम ध्यान रखेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, एज everything I have read and I have told you about the hobbies and all. So now let's see what the answer is given. The answer says Mr. Ram Bharose is a middle-aged gardener. Mr. Ram Bharose is a middle-aged gardener of 50 years. He is about 6 feet and has a solid build. अब solid build क्या होता है? यानी physically fit. Okay. He has a dark complexion. He is hardworking person with an experience of nearly 27 years or more working as a gardener in a school in Delhi. Now this information about the experience is not given in the information, but they have written it. So you can write it if you want, but remember the sentence should be the simple and meaningful one. If the your sentence making is not proper, then you the marks are going to be deducted from your paragraph. Okay, so जब आप लिखें तो sentence formation का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। Since his childhood he has a love for plants. He has a very small family, wife and 2 children. Now this information is given in your information section. He prepares biomanure very efficiently and believes that only biomanure can provide a true nutrition to plants. बायोमैन्योर बनाते हैं और मानते हैं कि ट्रू न्यूट्रिशन जो प्लांट्स को बायोमैन्योर दे सकता है। नाउ सी द डेकोरेशन ऑफ द लैंग्वेज। मैंने बोला था कि यू कैन डेकोरेट योर लैंग्वेज। नाउ सी देयर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। ही टेक्स केयर ऑफ हिज प्लांट्स लाइक अ फादर डज फॉर हिज चिल्ड्रन। He can in the example it could have been written very easily कि he took care of his plants. That's it, खत्म हो जाता, ठीक है। एक सेंटेंस ऐसे भी तो बन सकता था। अगर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी नहीं आती है तो मैं सिंपल सेंटेंस लिखने वाली हूँ कि he takes care of his plants, खत्म। Now see, he has compared the caring of the plants with the father, with the way the father cares for his children. Okay, so this is what the decoration of the language is. He takes care of his plants like a father does for his children. आपके पापा भी आपका बहुत ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही वो अपने प्लांट्स का, कौन? मिस्टर राम भरोसे, who is a gardener, take care of his plants. Okay, so this is the example which is given already in your book, and you don't have to do anything about it, but you have to just read it, right? Now this is an example where it is given below is a profile of Mr. Gajendra, a school watchman. Who is the watchman? Watchman is a chowkidar. Okay, so chowkidar or a watchman or a security person is a very important one. He helps you to keep your things securely.
Okay, so write a short bio sketch of Mr. Gajendra. You could take the help of clues given below. Age around 28 years, height and weight 6 feet 7 inches, solid build. Okay, so family, bachelor, alone. Education, graduate. His likes and dislikes, wrestling and watching TV. Wrestling मतलब कुश्ती, ठीक है? WWE भी होता है ना, wrestling आप वहां पर भी देखते हैं, टीवी पे आती है wrestling. There are certain rules and regulation, and then the people wrestle, right? Why he is popular? Very punctual and brave man. He is very punctual and very brave man. That is why he is very popular. Bachelor means he is not married. A person, a man who is not married is known to be bachelor. ठीक है? ग्रेजुएट कौन होते हैं? जिन्होंने अपने कॉलेज में पढ़ाई की होती है. जैसे ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होता है? जब आपने बीए कंप्लीट कर ली होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी कंप्लीट कर ली होती है, बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम कंप्लीट कर ली होती है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, या बीटेक कंप्लीट कर ली होती है. दैट इज नोन एज ग्रेजुएशन. दिस इज अ डिग्री गिवन इन द एजुकेशन फील्ड. ओके, सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. I would prefer that you write it on your own words. Okay. Mr. Gajendra is a school watchman. He is about 28 years. He is 6 feet and 7 inches tall and has a solid build. जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमको उसको इंक्लूड करना है अपने बायो स्केच में. ठीक है? Again, here you are seeing that there is no information regarding the word limit. So you can write not as much as you can, but okay, roughly 8 to 10 lines. ठीक है? अब 8 to 10 lines का मतलब ये नहीं है कि 8 lines ही लिखनी है, उससे कम होगी तो मैम नंबर कट जाएंगे. No. Always while you are writing the bio sketch, keep in the mind that you have to include all these information in it. All the information should be there in your bio sketch. So he is 6 feet 7 inches tall and has a solid build. Solid build, I have told you, physically fit. Okay. He is educated till graduation. He is a bachelor. He loves watching sports like wrestling. He is very punctual and brave man. Okay, this is a plain English and I have not used any decoration in this particular bio sketch. Okay, बहुत ही plain English है, बहुत ही easy है, बहुत ही simple है. आप भी लिख सकते हैं. आपको information सारी दी हुई है. जो information दी हुई है उसी को आपको sentence formation करना है और sentence formation करके paragraph के रूप में लिख के, and that is what the bio sketch is all about, right? Now let us see one more example, and this is not from your book, but it is from the outside of your book. Now given below is a profile of Sourav Ganguly. Now who is a Sourav Ganguly? You all know he is a cricketer, right? Write a bio sketch of him in about 100 words. Now I have given you the word limit that you have to write it in the 100 words only. You may take the help of the inputs given below. अब आपको inputs यानी clues दिए हुए हैं. क्या clues दिए हुए हैं? Name सौरभ गांगुली, birthday बताया हुआ है, birthplace बताया हुआ है, July 8, 1972, कोलकाता में इनका बर्थ हुआ है. ठीक है? Test debut. Now what is test debut? यानी अपना पहला क्रिकेट मैच इंटरनेशनली उन्होंने कब खेला था. तो टेस्ट डेब्यू उनका कब हुआ है? जून 20 को 1996 में. कहां पर? इंग्लैंड में, लॉर्ड्स में. लॉर्ड्स इंग्लैंड में एक जगह का नाम है. ठीक है? सो लॉर्ड्स में इनका क्रिकेट डेब्यू हुआ था. सो जून 20, 1996 एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड. दिस इज वेयर he did his career debut.
उन्होंने अपना करियर यहाँ से, फर्स्ट मैच जो उन्होंने इंटरनेशनल खेला था वो यहाँ से खेला था। टेस्ट अचीवमेंट यानी उन्होंने कितने मैचेस खेले, 113 टेस्ट मैचेस खेले, 7,212 रन्स बनाए हैं, 42 का एवरेज रहा है, 16 सेंचुरीज बनाई है, 35 हाफ सेंचुरी, सेंचुरीज यानी 16 बार 100 रन बनाए हैं और 35 बार हाफ सेंचुरी यानी 50 रन बनाए। ओडीआई के अचीवमेंट क्या है, 311 मैचेस खेले, 11,363 रन्स बनाए हैं, एवरेज जो है वो 4,102 का है। हाईएस्ट स्कोर क्या है इनका ओडीआई में, वन डे का जो मैच होता है दैट इज ओडीआई, वन डे इंटरनेशनल मैच इज नोन एज ओडीआई। 183 इनका ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर है, अगेंस्ट कितने बॉल्स में, 158 बॉल्स में। कहाँ बनाया, किसके अगेंस्ट बनाया था, श्रीलंका के अगेंस्ट बनाया था। कब बनाया था, 1999 में बनाया था, वर्ल्ड कप में बनाया था। ही इज पॉपुलरली नोन एज प्रिंस ऑफ कोलकाता। So now how are we going to write this bio sketch? So we are going to write this bio sketches. Saurabh Ganguly was born on July 8, 1972 in Kolkata. Ganguly made his test debut at Lord's on June 20, 1996 and struck a fine century in his debut match against England. Okay, now this is I've been telling you that you can decorate your sentence. So I have also decorated my sentence here. And struck a fine century in his debut match against England. He played 113 tests and accumulated 7,212 run. आप ऊपर देखो तो उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं, 7,212 रन्स। सो एक्यूमुलेटेड मतलब उन्होंने इतने रन बनाए हैं। मैं स्ट्रेट अवे भी लिख सकती थी, he had made 7,212 रन, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के लिख दिया तो उससे अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। With a healthy of 42 plus average, he scored 16 centuries and 35 half centuries in the process. इतनी उन्होंने सेंचुरीज बनाई है और इतनी हाफ सेंचुरीज बनाई है। In ODIs, he ranked among the greats with 11,363 runs under his belt from 311 matches at an average of 41.02. आपको एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 41, सॉरी यहाँ पे 41 पॉइंट लगना था, सॉरी यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, आप लगा लीजिएगा 41.02. His highest ODI score came in the biggest stage when he butchered Sri Lanka. Now this is what the sentences are decorated, right? मैं सीधा सीधा भी लिख सकती थी, his highest ODI score is against Sri Lanka and which is 158 ball, in 158 ball 183 runs. लेकिन मैंने अपने सेंटेंस को कैसे डेकोरेट किया है, his highest ODI score came in the biggest stage when he butchered Sri Lanka on a way to a 158 ball 183 in 183 in the 1999 World Cup. He is popularly known as Prince of Kolkata. ठीक है, so this was, अच्छा, now you have to keep in mind that you have to write the bio sketch in 100 words. I have talked about it, okay, how to manage your lines, ठीक है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने आपसे कहा था कि अगर 2-3 लाइन ज्यादा या कम हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम आपको नहीं लिखना है। बहुत ज्यादा का मतलब है कि मेरी राइटिंग बड़ी है इसलिए मेरी 12 लाइंस में जाके 100 वर्ड्स आते हैं, बट अगर मैं उसको से 20 लाइंस लिख रही हूँ तो फिर तो मैंने ज्यादा लिखा है 100 वर्ड्स, ठीक है। So given below are some notes of Annie Frank. Use them to write a short bio sketch of her in about 100 words.
आपको एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की के बारे में बायो स्केच लिखना है और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। नाउ नेम इज एनी फ्रैंक, बर्थ डे कब है उनका, 12 जून 1929 को, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में। ये फ्रैंकफर्ट में एक जगह का नाम है। इनका प्रोफेशन क्या था, शी वॉज अ राइटर। पेरेंट्स का नाम, ऑटो फ्रैंक वॉज अ फादर, Edith Frank was a mother and Margaret was a elder sister. She belongs to the Jewish family. Best known for writing a diary while hiding in the Nazis during the World War II. ठीक है, इनका ये क्यों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपनी डायरी लिखती थी। अब डायरी लिखना आपने देखा होगा, डायरी एंट्री के बारे में आपने अपनी पीछे की क्लासेस में 6th में भी पढ़ा होगा कि डायरी एंट्री कैसे की जाती है। बट जो लोग डायरी लिखते हैं ना, रियल लाइफ में जो लोग डायरी लिखते हैं वो अपने सारे इमोशंस, सारी बातें अपनी डायरी में लिखते हैं, डायरी को बताते हैं। ठीक है, और ये डायरी जो होती है बहुत ही पर्सनल चीज होती है, तो इसको छिपा के रखते हैं जिससे कि सब लोग इसको पढ़ेंगे। राइटिंग अ डायरी व्हाइल हाइडिंग इन द फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हम नाजीज के बारे में अभी बात करेंगे। डाइड मार्च 1945 एट द एज ऑफ 15 इन बर्गन-बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। अचीवमेंट, her famous work The Diary of a Young Girl. So एनी फ्रैंक जो थी वो 15 इयर्स की एज पे उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने तब तक अपना डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से पूरी एक बुक जो है उनके नाम से पब्लिश्ड है। और उस बुक में क्या है, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, है ना। हिटलर कौन थे, आपने सुना होगा कि जर्मनी के रूलर थे, ही वाज अ डिक्टेटर। तो डिक्टेटर क्या करते हैं, डिक्टेटर किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डिक्टेटर। ठीक है, सो हिटलर वाज अ डिक्टेटर। तो उन्होंने बहुत सारे जूइश लोगों को मार दिया था, बहुत सारे जूइश लोगों को मार दिया था। जब मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे जूइश लोगों को मार दिया था, तो उसमें बच्चे भी थे, लेडीज भी थी, गर्ल्स भी थी, बॉयज भी थे, और यंग भी थे, ओल्ड भी थे, सबको उन्होंने मार दिया था। तो कई सारे जू जो लोग थे, जूइश लोग जो थे, वो छुप के रहते थे। ठीक है, सो और अगर वो हिटलर के लोगों के पकड़ में आ जाते थे तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप वो जगह होती थी जहां पे जूस को रखा जाता था मारने से पहले। ठीक है, सो इस लड़की ने, एनी फ्रैंक ने, अपने एक्सपीरियंस को, अपने इमोशंस को अपनी डायरी में लिखा, जिसको उसने नाम दिया था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, अब ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसके बारे में आपको, एनी फ्रैंक के बारे में आपको बायो स्केच लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, एनी फ्रैंक वाज बोर्न ऑन जून 12 1928 in the famous place of Germany, Frankfurt. She was a writer. Her parents were Otto Frank and Edith Frank. She had an elder sister, Margaret. She belonged to the Jewish family. She wrote her famous work, The Diary of a Young Girl, while she was hiding from the Nazis during the World War II. World War II के टाइम में ये लड़की नाजीज, यानी जो हिटलर के लोग थे उनको नाजीज बोला जाता था, तो नाजीज से छिप कर रह रही थी। तो जब वो छिप कर रह रही थी तो उसको हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वो लोग आके मुझे पकड़ ना हो। सो इस वजह से वो क्या था, वो अपनी डायरी को अपनी सारी चीजें बताती थी, और वो अपनी डायरी इतनी छुपा के रखती थी कि जब उसको पकड़ भी लिया नाजीज ने तो भी उसकी डायरी जो थी वो वहां पर मतलब बहुत सेफली पड़ी रही। और जब उसको ले गए, उसकी डेथ भी हो गई कंसंट्रेशन कैंप में, तो उसके बाद ये डायरीज लोगों को मिली और उन्होंने इसको पढ़ा कि कैसा कैसा हिटलर के लोग उस कंसंट्रेशन कैंप में बिहेव करते थे, कैसे बिहेव वो जूइश लोगों के साथ करते थे। ठीक है, सो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल व्हाइल शी वाज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II. Her work got published in 65 different languages.
65 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसने ये जो डायरी लिखी थी वो डायरी पब्लिश हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, शी डाइड इन 1945 इन द बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप और इसकी डेथ जो है जब ये 15 इयर्स की थी 1945 में हो गई थी. ठीक. So this was again the example of one of the BioSketch. So this was all about the BioSketch section. I'm going to give you the digital copy of these BioSketch, the 2 extra ones. Okay, we are going to do it. And if you are having any question regarding the BioSketch, you may raise your hand. I want to take up your questions. If you are having any question regarding the BioSketch, please raise your hand. Please raise your hand if you are having any questions. Okay. Sabrine. Yes, Sabrine. Yes, beta. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Ma'am, I am having a doubt that Mhm. जैसे इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है बायो की, Yes. तो अगर उसमें हम कोई इंफॉर्मेशन डालना चाहें तो हम वो नहीं डाल सकते? हाँ, आप वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. मैंने ये बोला था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ऑन द कंडीशन दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी द ट्रू वन. बिल्कुल सही होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन राइट होना चाहिए. Then you can add the information. There is no harm in adding any information, Sabrina. Okay? Thank you, ma'am. Okay, thank you very much. Any other queries? Any other queries from your side, student? I want to take it up right now. Any queries? Okay, so I assume that you have understood this. And before winding up the session, I just want to tell you, we want to summarize what the BioSketch is all about. BioSketch is a short description of a person. किसी भी व्यक्ति का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, एक पैराग्राफ आपको लिखना है जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे. अब ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन आपको जो चीजें आपको इंक्लूड करनी है, जैसे नाम इंक्लूड करना है, एज इंक्लूड करनी है, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन इंक्लूड करना है, उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग को इंक्लूड करना है. ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा कि जिनको आप इंक्लूड जब तक नहीं करोगे तब तक जो है वो आपका ये बायोस्केच पूरा प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो ये सारी चीजों को इंक्लूड करके ही एक प्रॉपर बायोस्केच बन सकता है. ठीक है. एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच वाज रेज्ड बाय सबरीन वाज दैट कि अगर इंफॉर्मेशन हम अपनी तरफ से डालना चाहें तो क्या हम नहीं डाल सकते? हाँ, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं. एक ही शर्त है कि वो इंफॉर्मेशन अच्छा होगा कि अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हो, है ना. अच्छी बात किसी के लिए लिखी जाए, गंदी बात किसी के लिए क्यों लिखनी है ना. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि so and so is very झगड़ालू, so you should not be writing this ना कि he fights a lot. No, this is not a right sentence to write about a one person, है ना. हो सकता है वो आपसे लड़ाई करता हो, सबसे लड़ाई नहीं करता हो. So you are not going to write any negative thing about it, any person. Okay, ठीक है. आपको ऐसा लगता है कि वो लड़ाई करता है, but then you are not going to mention it in the BioSketch. आप BioSketch में ये सब नहीं लिखने वाले. ठीक है. BioSketch में आप पॉजिटिव चीजें लिखने वाले. पहली तो कंडीशन ये होती है. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स यू कैन ऐड, यू कैन डेकोरेट योर लैंग्वेज एज यू वांट टू. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अपनी लैंग्वेज को अच्छे से डेकोरेट करो. बहुत अच्छे से डेकोरेट करने से ये होता है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती है ना. यू कैन यूज द फ्रेजेस, आइडियम्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी वोकैबुलरी. व्हेन यू विल रीड in English,
when you start reading books in English, then your vocabulary is also going to be rich. So आप English को बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको अपने आप बहुत अच्छे अच्छे words लिखने को और समझने को आ जाएंगे. Okay, so this was the session. I will take your leave now. We will meet again. Okay, bye.